So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. In the previous lecture we have seen what is the definition of centroid, center of mass and center of gravity. अब उसमें से हमें आगे क्वेश्चन जो है वो सेंट्रॉइड के ऊपर आने वाले हैं, जिसमें हमें पहला टॉपिक हमें देखना है कि सेंट्रॉइड में अगर वायर एलिमेंट्स रहते हैं, वायर एलिमेंट्स मतलब क्या, जिनको कोई थिकनेस नहीं है, कोई एरिया नहीं है। जैसे कोई एक वायर ले लो, उस वायर को अगर मैं स्ट्रेट लाइन में कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो एक लाइन बनेगा, दैट इज अ स्टैंडर्ड वायर एलिमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसको अगर मैं सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट करूंगा, उसको शेप दे दूंगा सर्कल का, तो सर्कुलर वायर एलिमेंट बन जाएगा। हाफ सर्कल दे दूंगा तो हाफ सर्कल का वायर एलिमेंट बन जाएगा। इन वायर एलिमेंट्स का सेंट्रोइड कहाँ पे आता है वो हमें समझना है, सही है। सो कौन कौन से स्टैंडर्ड वायर एलिमेंट्स है वो पहले हम देखेंगे, उनका सेंट्रोइड कहाँ पे आता है वो हम समझेंगे, और फिर आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, कॉम्पोजिट वायर एलिमेंट जो रहेंगे, 2-3 वायर एलिमेंट्स बन के एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका सेंट्रोइड हमें ढूंढना रहेगा। तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के स्टैंडर्ड वायर एलिमेंट्स का सेंट्रोइड पता होना चाहिए। तो पहला कौन सा है, लाइन है। तो समझते हैं कि लाइन का सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा। सो बहुत ही सिंपल है, बहुत कॉमन सेंस की चीज है भाई। अगर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूं मैं, लेट्स से दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन A to B which has certain length L. Let's say the length of the wire element is L. This is how much? This is L. Then can you tell me where will be the centroid of this particular line? That is at its center. So where is the center? The center will be at the L/2 distance from the one end. So this is nothing but centroid. Now we can identify this. Now we have to show its location with respect to origin. So if my origin is this, listen my sentence carefully, if this is the origin, then with respect to this origin, where is your centroid in x direction? That is your x coordinate of the centroid, that is x. This distance will be x. So, and what will be the y coordinate in this case? The y is 0 because there is no y axis. I mean, we are not moving in the y axis, the line is horizontal, so the y is 0 in this case. But we must know that what is x here, x is L/2. How much is the x then? It is L/2. So what are the coordinates of the centroid then? Finally we can write down, this is L/2 and y coordinate is 0. So like this we must be able to show the coordinates of the centroid. Clear है सबको? लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है तो इस तरह से आएगा, अगर लाइन वर्टिकल है, फॉर एग्जांपल लेट अस से दिस इज द line AB, which is a vertical line, where will be its centroid? At its center. Then what will be the coordinates of the centroid? Can you tell me? This is your x-axis and this is your y-axis. So in that case, what are the coordinates of the centroid? Y, in x direction we are not moving, so x is 0, right? And in y direction, how much we are moving? We are moving L/2 distance, and total length is L. Let's say this is the length. Total length of the object is L. So in y direction, how much we are moving? We are moving in L/2 distance. So what are the coordinates then? We can write down, this is x is 0 and y is L/2, like this. Means basic concept is that it is at the center of the line. वो center line के center पे आने वाला है. Depending on the location of the origin will decide its location. ये origin हो गया हमारा O, तो O से कहाँ पे O, वो decide हम करेंगे, ठीक है। So now if your line is inclined, अगर line incline है समझो, at certain angle, where will be its centroid? Of course at the center of the line, but the coordinates will be something different. Observe this carefully what I am doing. I am putting x axis here, x axis यहाँ पे डाल देता हूँ, y axis यहाँ पे डाल देता हूँ, तो मेरा ओरिजिन कहाँ पे आएगा? ओरिजिन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से मुझे उसका x कोऑर्डिनेट मेजर करना पड़ेगा और y कोऑर्डिनेट मेजर करना पड़ेगा। सेंट्रोइड कहाँ पे है? ये हमारा सेंट्रोइड है, तो इसका x कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएगा बताओ मुझे ग्राफिकली। ये डिस्टेंस हमारा x कोऑर्डिनेट आएगा, सही है, एंड दिस डिस्टेंस विल बी अवर y कोऑर्डिनेट। अब ये कितना आएगा वो अगर मुझे फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे इसका टोटल लेंथ कितना है वो पता होना चाहिए, इसका टोटल लेंथ कितना है वो पता होना चाहिए।
So for example, its total length is L. Then what will be this distance? This will be L by 2, right? This will be L by 2. And if I know this angle alpha, अल्फा थीटा कुछ भी बोलो, उसको नाम कुछ भी दे दो, थीटा अगर बोलता हूं मैं, समझो, मोस्ट कॉमनली वी कॉल दिस एज थीटा. So what will be this distance? This is L by 2 cos theta. So its x coordinate will be L by 2 cos theta. And what will be the y coordinate? L by 2 sin theta. This will be L by 2 sin theta. Clear? So that is how we can represent the centroid of the line. Depending on situation हमें वो फाइंड करना पड़ेगा, कहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है, ओरिजिन कहाँ पे वो देखना है. बेसिकली हमें इतना याद रहना चाहिए कि लाइन का सेंटर L by 2 पे आता है. Got it? So now we'll go for the next, that is circle. अभी हमें पता है सर्कल का सेंट्रोइड कहाँ पे आता है, बहुत ही सिंपल है. This is your circle. This one is center line. What is the radius of circle? That is R. Now where is its centroid? We know that the center is here, so it's centroid. Where is the origin? If my origin is here, then the centroid location will be 0, 0, because the centroid itself is at origin. But if your origin is at different location, then the centroid of this circle will be at different location. Again remember that we are looking at the centroids of the wire elements. इसके अंदर कुछ नहीं है, वायर है, वायर है, तो उसका सेंट्रोइड हमें ढूंढना है. तो ये अगर यहाँ पे आता है, कब आएगा? जब हमारा ओरिजिन और एक्स वाई एक्सिस वहां पे है. नाउ आई शिफ्ट द एक्स वाई एक्सिस. तो अभी हमारा सेंट्रोइड कहाँ पे है? यहाँ पे है. मैंने एक्स वाई को कहाँ रखा है? देखो, दिस इज योर सेंट्रोइड. सही है. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट इट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट. क्या आएगा बताओ मुझे? इफ द रेडियस इज आर, क्या आएगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट? इसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा ये डिस्टेंस ना, ये कितना डिस्टेंस है बताओ मुझे? माइनस आर है. Getting this? This is the radius, but it is in minus x direction, so minus r. So it will be minus r, comma y कितना आएगा बताओ मुझे? y यहाँ तक जाना पड़ेगा y डायरेक्शन में, तो ये आपका y है. How much it is? It is minus r again, because in minus x direction or minus y direction you are going, so it is again minus r. So in this case, centroid is at minus r location. So what I am explaining is that आपका x और y का डायरेक्शन, ओरिजिन का लोकेशन जहां पे रहेगा, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि उसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ और अ सर्कुलर वायर एलिमेंट. लेट अस सी द सेमी सर्कुलर वायर एलिमेंट. इन दिस केस यू हैव टू रिमेंबर सम फॉर्मूला. क्या रहेगा? अभी सेमी सर्कुलर वायर एलिमेंट है, याद रखो वायर एलिमेंट है, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं है. तो इस तरह से इतना वायर है यहां से यहां तक, बीच में क्या है? कुछ नहीं है. तो यहाँ पे कुछ लाइन आएगा, समझो, यहाँ पे एक एक्सिस दिखा देता हूं मैं. और अगर मेरा कोई इंसिडेंटली ओरिजिन यहाँ पे ही है, सो इफ दिस इज माय ओरिजिन, नाउ ट्राई टू फाइंड वेयर विल बी द इट्स सेंट्रोइड. कहाँ पे आएगा सेंट्रोइड बताओ मुझे? अब देखो, ये वायर इधर है, इधर का वायर निकल चुका है, तो जो सेंट्रोइड यहाँ पे था वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, वायर की तरफ शिफ्ट हो गया ना. इधर बाउंड्री निकल गया उसका, तो इधर जाएगा, तो इधर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कहीं आएगा समझो. तो सेंट्रोइड यहाँ पे आता है, तो इसका लोकेशन हमें पता होना चाहिए. अभी हमें ये तो पता है कि ये वर्टिकल इस सिमेट्रिकल लाइन पे आएगा, इसलिए इसका समझो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 आएगा. लेकिन ये वाई कोऑर्डिनेट कितना है वो हमें पता होना चाहिए. तो इस केस में कितना आएगा बताओ मुझे? आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो याद रखो, दिस डिस्टेंस विल ऑलवेज बी 2r by पाई. इसको हमें याद रखना है. सो दिस डिस्टेंस विल बी 2r by पाई, मतलब ओरिजिन से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. कितने डिस्टेंस से शिफ्ट होगा? 2r by पाई. ओरिजिन कहाँ है? उसका सर्कल का सेंटर जो था वहां से, ओरिजिन से याद नहीं रखना है, उस आर्क का, ये जो हाफ सर्कल है उसका सेंटर कहाँ पे? यहाँ पे. उससे वो 2r by पाई अंदर शिफ्ट होता है नया आपका सेंट्रोइड. तो सेंट्रोइड के या इस केस में सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बताओ मुझे? इस केस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 2r by पाई. तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, 2r by पाई. नाउ फॉर एग्जांपल, एक आर्बिट्री में क्या करता हूँ, इस तरह से आपका हाफ सर्कल अरेंज करता हूँ और आपको मैं देता हूँ आपका जो ओरिजिन है वो यहाँ पे है, समझो. फॉर एग्जांपल योर ओरिजिन इज हियर. दिस इज फॉर एक्सरसाइज, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं ये. अब मुझे बताओ ये कहाँ पे आएगा? ये हमारा ओरिजिन हो गया. अभी सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा? ये हाफ सर्कल है, आपको दिया रहेगा ये हाफ सर्कल है, तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा बताओ मुझे? हाफ सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रोइड नहीं आएगा, अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो सेंट्रोइड यहाँ पे अंदर शिफ्ट हो जाएगा. सही है. ये आपका सेंट्रोइड का नया लोकेशन है.
तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओ मुझे। अब हमें पता है कौन सा डिस्टेंस, थोड़ा इधर कर लेता हूँ। अभी हमें पता है कौन सा डिस्टेंस 2r/π होता है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस नहीं, सर्कल के सेंटर से 2r/π अंदर शिफ्ट हो जाता है वो, तो ये डिस्टेंस हमें 2r/π मिलेगा। गेटिंग और नॉट? So this distance is 2r/π. Now we need to find out the axis, x axis coordinate. ये coordinate है हमारा, ओरिजिन से यहाँ तक शिफ्ट हो गया, तो ये कितना आएगा बताओ मुझे। टोटल डिस्टेंस कितना है ये r है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना आएगा, ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, दैट इज r माइनस 2r/π। तो हमें याद क्या रखना है, हमें याद 2r/π ही रखना है। हम बाद में डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन ओरिजिन का लोकेशन फाइंड करके हम ये कंप्यूट कर सकते हैं। तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया r माइनस 2r/π, और y कोऑर्डिनेट क्या है, वैसे भी ये x एक्सिस के ऊपर है, इसलिए y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा x एक्सिस यहाँ पे है, y एक्सिस मैंने यहाँ पे दिया था। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द ओरिजिन, दिस सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन थिंग्स विल चेंज। ओके, सो दैट इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट इन दिस केस। अगर इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, x एक्सिस y एक्सिस को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो चीजें बदल लेंगी, उसको देख के फिर ऑब्जर्व करके हमें डिसाइड करना है। याद हमें क्या होना चाहिए कि ओरिजिनल सेंटर से हमारा सेंट्रॉइड, सर्कल के सेंटर से सेंट्रॉइड ऊपर शिफ्ट, मतलब सर्कल के टुवर्ड्स शिफ्ट हो जाता है, कितने डिस्टेंस से शिफ्ट होता है, 2r/π, ये हमें याद रखना है। ये याद रहेगा तो इस साइड का डिस्टेंस निकाल सकते हो, जो कुछ लगेगा वो निकाल सकते हो। सही। अब देखते हैं क्वार्टर। तो क्वार्टर में क्या होगा, मतलब फोर्थ पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एज क्वार्टर। तो समझो ये अगर क्वार्टर है और वायर क्वार्टर है, सही है, तो अगर समझो यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस रखता हूँ, आसान केस वाई एक्सिस, और ये वाला एक्स एक्सिस, ये सबसे आसान रहेगा। तो अब मुझे बताओ इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा, ओरिजिनल सर्कल का सेंट्रॉइड यहाँ पे था, तो इसके टुवर्ड्स शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना डिस्टेंस शिफ्ट होगा वो हमें पता होना चाहिए। तो नया सेंट्रॉइड समझो यहाँ पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है, तो कितना डिस्टेंस शिफ्ट होगा, वही वैल्यू आपको, वही चीज याद रखना है, 2r/π। इसके लिए भी वही याद रखना है, लेकिन ये दोनों साइड से शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी वो, ये कोई भी एक एक्सिस पे रहा ही नहीं है, वो दोनों साइड से अंदर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी इधर का कर्व भी निकल गया है। सही है, तो ये भी कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 2r/π, और ये डिस्टेंस है 2r/π। सो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे इस केस में, इस केस में ये 2r/π ये दो ही कोऑर्डिनेट आएंगे उसके। and y coordinate will be also 2r/π. this is the coordinate of the centroid। कब, जब यहाँ पे ओरिजिन है, प्रोवाइडेड दिस सिचुएशन, यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन बदल देता हूँ तो ये भी बदलेंगे थोड़े। सही है, ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है वो हमें समझना चाहिए, आर्क के सेंटर से हमें मेजर करना है, इतना याद रखना है, ओरिजिन को याद नहीं रखना है। ये जो आर्क है उसके सेंटर से ये 2r/π होता है। सही है, सो नाउ लेट अस सी नेक्स्ट वन, दैट इज सेक्टर। अभी ये एक स्पेशल केस है सेक्टर, इसके ऊपर क्वेश्चंस मोस्टली नहीं रहते हैं, आ गया तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए बता देता हूँ। सेक्टर मतलब क्या, सर्कल का कोई भी एक आर्बिट्ररी हिस्सा, उसे बोलते हैं सेक्टर। मतलब समझो सेक्टर कैसे बोला जाता है, एक सर्कल है, उसका अगर मैं ये समझो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस में ड्रॉ कर लेता हूँ। सही है, अब इस सर्कल का बाकी हिस्सा में उड़ा देता हूँ और कुछ आर्बिट्ररी हिस्सा रखता हूँ, इतना वाला, ये वाला यहाँ तक रखता हूँ, ये बाकी सर्कल जो है उड़ा निकाल देता हूँ मैं। तो समझो ये बाकी सर्कल निकल गया, तो ये बचा हुआ जो हिस्सा इसे बोलते हैं सेक्टर। कौन सा भी ले सकते हो, कहाँ पे भी ले सकते हो, कितना भी बड़ा ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द गिवन सिचुएशन। तभी ये अगर ये सेक्टर मैंने लिया, तो इस सेक्टर को कैसे सिग्निफाई किया जाता है, सेक्टर को डिफाइन करने के लिए एंगल दिया जाता है, ये एंगल, उसके सेंटर से वो कितना एंगल बना रहा है, इस तरह से उस सेक्टर को डिफाइन किया जाता है। और जनरली सेक्टर को एंगल इस तरह से मेजर करते हैं कि वो सेक्टर के दो हिस्से किए जाते हैं हमेशा, और एक हिस्से को नाम दिया जाता है अल्फा। मतलब टोटल एंगल कितना कवर किया उसने, 2α कवर किया। सही है, ऐसा क्यों करते हैं, वो सिंप्लिसिटी के लिए करते हैं, क्योंकि हमें पाई से कंपेयर करना होता है। तो मैं बताता हूँ 2 मिनट में। तो अभी हमें इसका सेंट्रॉइड ढूंढना है, बताओ मुझे इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा, पूरे सर्कल का सेंट्रॉइड कहाँ पे था, यहाँ पे था, इधर का हिस्सा सब कुछ निकल गया, तो सेंट्रॉइड इधर शिफ्ट हो जाएगा, उस वायर की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये आपका एक बहुत नजदीक पहुंच जाएगा, क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं अभी, तो इतना ही बचा है, तो उसके नजदीक वो सेंट्रॉइड जाएगा यहाँ पे। गेटिंग और नॉट? सो दिस विल बी द सेंट्रॉइड। सो व्हाट इज द लोकेशन, सो वो हमें याद होना चाहिए।
तो उसके लिए ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू हमेशा आती है r sin अल्फा डिवाइड बाय अल्फा डैश। डैश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो रेडियन में लेना है। जब भी एंगल नेकेड लेना होता है वो रेडियन में लेना होता है हमेशा, और जब एंगल हम अल्फा साइन कॉस के साथ डालते हैं तो उसको हम डिग्री में लेते हैं। लेकिन जब भी एंगल सिर्फ उसको कोई साइन नहीं है, कोई कॉस नहीं है, उसका सिर्फ एंगल लिखना है तो मुझे रेडियन में लिखना पड़ता है। जैसे हमेशा 180 डिग्री को हम पाई यूज करते हैं, हम कभी भी 180 यूज नहीं करते कैलकुलेशन में। पेरीमीटर फाइंड करने टाइम पे हम पाई डी लेते हैं। मतलब क्या, पाई क्या है, रेडियन में ना। 180 डिग्री का रेडियन क्या होता है, पाई होता है। तो मतलब जब भी हमें नेकेड एंगल यूज करना है तो हमें उसको रेडियन में लेना पड़ता है। जब भी हम साइन कॉस के साथ लेते हैं तो उसको डिग्री में लेते हैं। तो ये फॉर्मूला जब यूज करेंगे हम, तो अगर ये एंगल 30 डिग्री दिया है तो साइन 30 लेंगे, लेकिन नीचे 30 नहीं डालेंगे। नीचे क्या डालेंगे, 30 इंटू पाई बाय 180 डालेंगे। ये वैल्यू निकालेंगे, ये एंगल रहेगा रेडियन में, वो यहाँ पे डालेंगे। समझ गए इसका मीनिंग। ये क्वांटिटी निकालेंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा मुझे इस पॉइंट के साथ। ये अगर सेंटर है और यही आपका ओरिजिन भी है तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा r sin अल्फा बाय अल्फा डैश। ये आपको याद रखना है। बाद में हमें इसका लेंथ भी लगेगा, इसका पेरीमीटर, इस आर्क का पेरीमीटर लगेगा। तो ये पेरीमीटर मतलब लेंथ, अगर उसको नाम देता हूं मैं तो लेंथ रहेगा इसका। ये कितना लेंथ है वो हमें पता होना चाहिए। तो इसको याद रखने के लिए मैं फॉर्मूला बताता हूँ, हमेशा समझाता हूँ कि अगर ये सर्कल है तो इसका पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई r होता है ना। सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, सर्कल का लेंथ अगर कैलकुलेट करेंगे इसका तो 2 पाई r आता है। तो उस तरह से इस कर्व का भी लेंथ आता है 2 अल्फा r। पाई को रिप्लेस करना है अल्फा से, सही है। इसलिए इसको हाफ को मेजर किया गया, क्योंकि देखो इसमें क्या है, देखो पाई क्या है, इतना एंगल कितना है, पाई। तो 2 पाई मिलके पूरा सर्कल बनता है, 2 पाई मिलके पूरा सर्कल बनता है 360 को। उसी तरह से वो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, सिंप्लिसिटी और सिमिलरिटी मेंटेन करने के लिए इसको भी 2 अल्फा कर दिया। अगर ये टोटल अल्फा निकते यहाँ पे तो यहाँ पे अल्फा बाय 2 लेना पड़ता था, सही है। तो इसलिए उसको ये अल्फा इसको डिफाइन किया है, सो दैट 2 अल्फा करके हमें इसका लेंथ मिल जाता है। तो ये फॉर्मूला में याद रखना है। कहाँ से याद रहेगा ये, अभी यहाँ पे देखो ये नेकेड अल्फा है तो इसको रेडियन में डालना पड़ेगा, वेयर अल्फा डैश इज द एंगल इन रेडियन। स्पेलिंग देख लो, पता नहीं मुझे रेडियन का क्या है। एंड अल्फा इज एंगल मेजर्ड इन डिग्री। ये कन्वेंशन यूज करके आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है, सही है। सो क्या याद रखना है आपको, उसका लेंथ कितना रहेगा, तो 2r अल्फा रहेगा, और उसका लोकेशन कहाँ पे आएगा, अभी सी का लोकेशन क्या आएगा, x, एंड y क्या है, 0 है, सही है। अगर ये इस तरह से रहता, यहाँ पे रहता, तो हमें ये कोऑर्डिनेट y रहता और x 0 रहता, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द ओरिजिन हम डिसाइड करेंगे, सही है। So that is where these were the standard common cases that are the standard wire geometries used for the composite geometries, ठीक है। अभी इसमें क्या बचा है, ये मैंने सब कुछ लोकेशन बता दिया। अब हमें इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना पड़ेगा, हर बार लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। जैसे पहले केस में क्या था, लेंथ तो वायर का लेंथ ही दिया रहेगा तो उसमें कुछ अलग मेजर करने की जरूरत नहीं है। इसका अगर लेंथ मेजर करना है, इस वायर को अगर मैं सीधा करता हूँ, सर्कल को ओपन करता हूँ, तो कितना लेंथ बनेगा, वो फॉर्मूला, दैट इज पेरीमीटर, दैट इज 2 पाई r। ये तो हम सबको पता है। सो लेंथ ऑफ द वायर एलिमेंट अरेंज्ड इन अ सर्कुलर फॉर्म इज 2 पाई r। क्लियर है। इस केस में क्या रहेगा, उस 2 पाई r को मैंने आधा कर दिया, आधा निकाल दिया। सो लेंथ इन दिस केस विल बी 2 पाई r is the total perimeter divided by 2. So 2 gets cancelled and it remains pi r. See, so length of the element which is in a circular form, half circle form, semicircular form, its perimeter or length is pi r. इसका क्या हो जाएगा, सिमिलरली पाई बाय 2 हो जाएगा, पाई r बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ कितना है सर्कल का, 2 पाई r है, और क्वार्टर मतलब क्या होता है, फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल। सो 1/2 रहेगा बचा, तो पाई r बाय 2 रहेगा, सही है। ये क्लियर हो गया। एंड द लास्ट पार्ट आई ऑलरेडी टोल्ड, ये सेक्टर का लेंथ कितना होता है, 2 अल्फा डैश इंटू r। ये कहाँ से याद रहेगा, 2 पाई r, पाई के जगह पे एंगल क्या रखना है, अल्फा रखना है। पाई किसके लिए है, टोटल सर्कल के लिए एंगल कितना होता है, 2 पाई होता है, और यहाँ पे सेक्टर के लिए एंगल कितना है, 2 अल्फा है, तो हमने 2 पाई को रिप्लेस किया 2 अल्फा से। क्लियर है सबको। सो दीज आर दी स्टैंडर्ड ज्योमेट्रीज। अभी इनको हम यूज करेंगे, इनको मैंने समराइज करके मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भी दे दूंगा, सबको समराइज करके दे दूंगा।